प्लेटफॉर्म की आप लोग डेली आते हैं, यू आर प्रेजेंटिंग योर केसेस, so this is a very good thing. So thank you very much, sir. And thanks to you all for listening me and following few simple things which make me comfortable during our QCI infection. At least we have started good things. So you people are also learning. If you go protocol wise, QCI inspection is not a different thing. It is only evaluating our studies, whether you are getting things in the proper direction or not. तो आपने देखा होगा it is a different kind of inspection. So what we are teaching, or whatever you are, if getting anything from outside also, mostly you people rely on other sources. So whatever from wherever the source, okay, that doesn't mean right now. But if you are unable to implicate your teaching or your learning into skill, okay, that again I am correlating with this case only. In this case, there is no mentioning of inspection या फिर examination of fistula. I think you all are very well aware what is fistula. So can anyone define without saying what is fistula? Anyone? No, don't talk, Prakash. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सिंपल फिस्टुलाइड एनो था, एब्सेस होता तो ये होता ये होता. आपको ध्यान रखना चाहिए पेरिएनल एब्सेस इज अ प्रीकर्सर टू फिस्टुला. तो इसका क्या मतलब हुआ? एब्सेस पहले हुआ, ठीक है. और आपकी नॉलेज से आप क्या सीख रहे हो कि ये तो सिंपल फिस्टुला है, एब्सेस नहीं है. एब्सेस होता तो आपके माइंड में शायद कि कुछ और खतरनाक रिप्रेजेंटेशन होता पेशेंट का. तो फिस्टुला इन एनो ज्यादातर केसेस में कब बनेगा? जब आपके पेरिएनल एब्सेस हुआ होगा. वो हील नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे एब्सेस बन गया है तो अंदर अपना ट्रैक्ट बनाता जाएगा. फिस्टुला इज अ ट्रैक्ट. It is not a blind track like sinus. So you must know how to differentiate between sinus and fistula also. But we are restricting ourselves to fistula in ano only. Okay? तो ये आपको कब आएगा? जब आप उसको एग्जामिन करोगे, ठीक है. तो फिर ऐसी गलती आपसे नहीं होंगी कि इट इज अ सिंपल फिस्टुला, तो बात की बात है. But always remember perianal abscess is a precursor to most probably the common cause is this one, ठीक है. Then आपको ये एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा पेशेंट का. अगर पस वहाँ से आ रहा है तो any other condition may also be there. Usually the pus discharge from anal area is fistula in ano, 90% cases. But you have to rule out so many other conditions, and it is not possible without physical examination, without proctoscopy examination, without colonoscopy examination, without UAC, without MRI anal region. Okay? So you have to go like this, even in case of fistula and anal. Okay? So simply just prescribing the medicine and you are not ruling out other conditions. Okay? So first of all, again I am focusing, instead of going directly to certain contradictory your favorite rubrics or some medicines, first of all take the particular complaints in detail. Okay? If you have started your case with that उनको कंप्लेंट थी फिस्टुला इन एनो की, ऐसे नहीं बोलेंगे आप. चीफ कंप्लेंट में आपकी कंप्लेंट्स आएंगी कि उसको पेन है, स्वेलिंग है, पस डिस्चार्ज है, एनल रीजन में इतने टाइम से है. ठीक है, गॉट इट. तो टाइम लगेगा. आप में कोई रेस नहीं है बेटा कि आपको आकर के यहाँ पर कोई रिजल्ट दिखाना है कि मैंने 1 डोज से या 3 डोज से ऐसे कर दिया, इससे कर दिया. ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है. हमारा है कि हमने आपको फिस्टुला इन एनो पढ़ाया है और आपके अंदर वो स्किल डेवलप हुई कि नहीं हुई कि आप फिस्टुला इन एनो को एग्जामिनेशन करके बता दें कि यस दिस इज अ केस ऑफ फिस्टुला इन एनो ऑन दीज फाइंडिंग्स. My clinical findings are this and my examination findings are these,
एंड माई लैब इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स आर दीज। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आई एम डायग्नोसिंग दिस एज अ केस ऑफ फिस्टुला इन एनो। क्लियर? तो जैसे ही आप डिजिटल एग्जामिनेशन तो जानते हैं, यस। डिजिटल एग्जामिनेशन मतलब भाई आप जैसे किसी डायग्नोसिस सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे उंगलियों से अरे बोलो तो बच्चे कर रहे हैं कोशिश, ठीक है। तो डिजिटल नेवर मींस दिस। डिजिटल एग्जामिनेशन होता है जो आप उंगली से एनल रीजन में एग्जामिन करते हैं। गुड, आपने प्रयास तो किया, एटलीस्ट ये उधर तो पहुंचे। तो इतना सन्नाटे की जरूरत नहीं है। आपने उसके बाद भी अगर फिस्टुला इन एनो नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा केस आपके पास फिस्टुला इन एनो आया, आप इंटर्न में हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो केस आया आप उसको जाकर के वापस से सर्जरी की बुक खोले, अगर ये सर्जरी से रिलेटेड है तो आप ये गलती नहीं करो, ठीक है। या हो सकता है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जैसे अगर मान लो डिजिटल एग्जामिनेशन तो आपको समझ में आ गया, पर रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन PRDGE, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या लगा आपका? कुछ भी नहीं। क्या क्या लगेगा इसमें आपको? क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? ग्लव्स। आपने याद हो तो सब कुछ कहीं रखा है, लातों की नहीं ग्लव्स। आज कौन कौन लाया? उसकी 10 आइटम वाली। हाँ देखो, 2 बच्चों के पास ग्लव्स हैं और आप डेली मेरे ख्याल में रेक्टल कंप्लेंट से एनकाउंटर होते होंगे, होते हैं कि नहीं? मैं जब 4 महीने था से 5-6 महीने, तो वहाँ से IS मैम, आयुष मिशन वाली मैम बहुत अच्छी मैम थी वो, तो जूम मीटिंग लेती रहती थी। तो उन्होंने कुछ ओपिनियन पूछे लास्ट में, तो मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे आप रेक्टल कंप्लेंट के लिए रिसर्च दे सकते हैं पॉलिसी के तहत। उन्होंने कारण पूछा, ऐसे थोड़े ना कुछ भी मांग लो। क्या कारण बताएंगे हम कि अगर हमें यहाँ पे एक अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाए रेक्टल कंप्लेंट के लिए? क्या कारण हो सकता है आपको? हैं? केसेस ज़्यादा आते हैं, तभी तो हम उस पर करेंगे। क्यों केसेस ज़्यादा आते हैं यहाँ? ठीक है। तो फेमस है हॉस्पिटल, हमारे बच्चे फेमस है, हमारे डॉक्टर फेमस है, ये कारण नहीं है। तो आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में रिसाइड करते हैं, और वो भी उस स्टेट में जिसमें कि बहुत स्पाइसी फूड खाया जाता है। तो कुछ हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जिससे रेक्टल कंप्लेंट्स आती हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हेमरॉइड्स, पाइल्स, फिस्टुला, ठीक है। तो ये बेटा आपको डायग्नोसिस सीखना ही पड़ेगा, और इसमें डिजिटल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको क्या लगेगा? लोकल एनेस्थीसिया, लिग्नोकेन जेली जो होता है, और ऐसे नहीं कि आप किस्सा मैंने भी बोला था, पहले उसके इंडिकेशंस पढ़ेंगे और मेन इंपॉर्टेंट जो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने क्यों जोड़ दिया? तो बता सकते हैं बाय डिजिटल एग्जामिनेशन इन व्हिच कंडीशंस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? व्हाट? We are just inserting little finger only. Okay, right. सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन तो बेटा कि कोई मना ही कर, कुछ नहीं करवाना। जैसे आप कह रहे वीडियो नहीं बनानी, तो वीडियो से पहले इम्पोर्टेंट है उससे क्या है, ठीक है। फिशर इन एनो, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये फिशर का केस है या फिस्टुला का केस है। क्योंकि फिशर इज सच अ पेनफुल कंडीशन कि जैसे आप डिजिटल एग्जामिनेशन जाएंगे, पेशेंट विल हिज एक्सप्रेशंस आर लाइक दिस ओनली, तो वो आपको पेन ही पता लग जाएगा पेशेंट का, एकदम से वो उसमें कंस्ट्रिक्शन आएगा और उसके जो एक्सप्रेशन होगा, भाई डॉक्टर माफ करो कहाँ छू रहे हो, मैं तो ऐसे परेशान हूँ, ठीक है। तो मैं यही इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ अभी को, कि आप इसको जा करके फिर से पढ़ना एंड ट्राई टू मेक एन एक्सपर्टी इन केस ऑफ रेक्टल कंप्लेंट्स। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। आई एम शेयरिंग माई वन पर्सनल केस विद यू पीपल, जो अभी रिसेंटली इन द रेक्टल कंप्लेंट्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इफ इट इज देयर, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ पस एंड more especially in the form of blood, then it is your duty to rule out first malignancy. What? ये नहीं चिक चिक के पेशेंट के सिम्टम्स बता रहे हैं कि मुझे फिस्टुला ही है, फिशर ही है, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स है, ठीक है। और भी ऊपर जाएंगे आप तो क्रॉस डिजीज, ठीक है, पढ़ा है ना,
तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके आना चाहिए क्रॉस डिजीज। ओके, और बाकी है कोलाइटिस वगैरह, जितना पढ़ते जाओगे बेटा आगे खुलती जाएगी। तो ये जहाँ भी ब्लीडिंग या डिस्चार्ज की बात आती है तो आप सबसे पहले रूल आउट करो क्या, चाहे आपको बिल्कुल पता लग रहा हो डॉक्टर साहब की ये प्योरली केस है इंटरनल हेमोरॉइड्स का और सारे फैक्टर्स भी पता लग रहे हैं, बट आप कैसे आपने रूल आउट किया माय डियर कि दिस वाज नॉट अ केस ऑफ मैलिग्नेंसी? या तो आप डायग्नोसिस पाइल्स का बनाओ या उसको रूल आउट करो, अदरवाइज यू कैन पुट योर पेशेंट इन अ वेरी बैड प्रोग्नोस्टिक डिजीज। नाउ आई एम शेयरिंग दैट केस with you. One of my friends residing in Pakbada, and he was junior to my elder brother in this modern public school. So he is a very good friend of mine also through this channel. ठीक है, जो कई बार आप रिलेशंस लेते हैं ना केस के, तो सिर्फ बताना ही मकसद नहीं है, उनकी यूटिलिटी आपने क्या ली वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने इसका क्या मैरिज हुई बट उसका कहीं कुछ यूज आया है आपके इसमें, तो डोंट डिस्क्लोज एथिकली अनएथिकल थिंग्स। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ उससे कुछ प्रॉब्लम आई या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, देन एंड ओनली देन यू कैन इन्वॉल्व सच थिंग्स। तो वो कुछ इधर प्रॉपर्टीज वगैरह का भी काम करते हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, पॉलिटिकल भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो एक मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठते हैं अक्सर वहाँ पे, हाँ, तो वो जब वो आए तो उन्होंने उनसे कुछ बिजनेस डील की होगी, फिर वो इसी बहाने से आते थे, कोई बिजनेस डील में पैसे वैसे अटक जाते हैं ना हमारे कि डॉक्टर साहब को बोलो कि वो जल्दी पेमेंट करना है ऐसा वगैरह। तो मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारा मामला है, मेरे डॉक्टर साहब फ्रेंड है, मैं तो नहीं कह सकता ऐसे। तो उसी बहाने से बोले मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर साहब एनुअल विजिट में, और अजीब सा लगता है जैसे कि पाइल्स वाइल्स मुझे नहीं है पहले, तो मैंने कहा उनसे मिल लो, पाइल्स एक्सपर्ट है हमारे डॉक्टर साहब, बात भी कर लें तो आपका पेमेंट कर लें। तो बोले हाँ, और कई बार हम क्या है बहुत ट्रिकी रोल प्ले करते हैं, हमें डॉक्टर को दिखाना नहीं होता है बट किसी वजह से हम पहुँचते हैं ऐसे। तो उन्होंने देखा तो वो उनको ब्लीडिंग हुई और उसमें आराम आ गया। ठीक है, तो मैंने उनसे बात की तो बोले कि डॉक्टर साहब थ्रोम्बोस पाइल्स रहे होंगे, या उन्होंने एग्जामिन भी किया था उसको, वो हर पाइल्स के केस को एग्जामिन करते हैं। तो ठीक है, तो जब वो उनसे लेकर के उस दिन मैं था नहीं, नेक्स्ट वीक में जब विजिट करने आए दोबारा से, उनके दोनों उद्देश्य रहते थे, अपना पेमेंट भी और दिखा भी दें, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी जब ब्लीडिंग हुई है। फिर आयुर्वेद में कई लैक्सेटिव्स ऐसे हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, और रेक्टल कंप्लेंट्स का मेन कारण क्या रहता है, ज़्यादातर का कॉन्स्टिपेशन, फिस्टुला में तो नहीं रहता ना, बट दूसरे जो रहेंगे उनमें ज़्यादातर आपको मिलेगा, तो रिकरेंसी इसीलिए बनी रहती है। तो जब वो दिखा के फिर मेरे चैम्बर में आ गए, तो जब उनसे मैंने बात की तो बोले यार बहुत मुझे ऐसा हो रहा है, जब से मैं दुबई से लौटा हूँ तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है, पेट अजीब सा लगता है। तो मैंने लिखा बैठा उसको, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, पेट ढीला है। तो सर डॉक्टर मैंने जैसे हाथ रखा उनके पेट पे, तो मुझे एक जगह से प्रेस ही नहीं हुआ, हाथ रखा, मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने यूँ ही मैंने कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, बोले कभी दर्द ऐसे हो जाता है, कभी थोड़ा सा एटेंसी रहती है, और ये देखा तो विजिबिलिटी तो नहीं थी लेकिन हार्डनेस थी। तो आई एडवाइज हिम अल्ट्रासाउंड एंड आई एडवाइज लिटिल बिट फोर्स कि कल करवा के मुझे बताएगा, 600-700 रुपये लगते हैं, और मैंने कहा पूरे एब्डोमेन का करवा लेना। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, उसमें सीटी एब्डोमेन की रिपोर्ट थी, CECT। व्हाट इज CECT? कॉन्ट्रास्ट इनहेंस मतलब सी ऐसे कुछ करके फिर से पहुंचे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो राइट CT बताओ, CT की फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड टोनो, और C एक तो उन्होंने बताई दिया कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो उससे जब कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम देते हैं तो जैसे जैसे फैलेगा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है फिर से। ठीक है, तो वो करवा रखी और उसमें सस्पिशन दिखा रखा एब्डोमिनल पॉक्स, पैंक्रेटाइटिस और
फॉलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, तो अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, पर कहते हैं ना